Hello friend, I am Saumadeep back to with a new tutorial video regarding IGBC codebook. My last two video I discussed about IGBC new building, that is the part 1, and IGBC new building, that is the part 2. So already I made two video. In case if you didn't see, so my humble request, just once go through it, then come to this video. This video is part 3 video of this series. So in this series, so in my last video, I talk about the section. This is known as sustainable architecture and design. So in this video, I will start this topic called site selection and planning. So in this video, we'll see how we plan the site and how we select our site, and in which combination or permutation we'll get the few points for IGBC. So let's get started. Without skipping the video, watch the video till the end because this is your benefit. Okay, because you have to qualify the IGBC AP exam in one attempt. Okay, and in my end of my video I will discuss how will you get the study material. Okay, so let's get started. So first point is that local building regulation, that is the SSP. So like previous tradition, what is the SSP? Site selection planning. Okay, the mandatory requirement 1. According this SSP mandatory requirement 1, that the project shall comply with following statutory approval from the Government of India or state government authority as applicable. Suppose you make a property in Kolkata. Okay, in Kolkata. Then what happens? You have to take permission from your state government, otherwise government of India. Okay, this is a very basic thing. So you have to, if you are in charge of project, then you have to approve site plan and building plan for construction, and status of completion or completion certificate signed by architect, engineer और owner. मतलब सपोज आपने ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना है आपको, ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा? डिजाइन, ड्राइंग, various types of permission like your fire permission, environment clearance, so that you have to all kind of certificate that signed by architecture design owner. I take a small example. ओनर क्या आपको सर्टिफिकेट दे सकता है? लैंड का सर्टिफिकेट ओनर दे सकता है. ओनर का सर्टिफिकेट हो गया लैंड. इंजीनियर का सर्टिफिकेट हो गया जैसे कि आपका डिजाइन एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग. आर्किटेक्चर का क्या हो सकता है? आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट हो सकता है एस्थेटिक डिजाइन और लैंडस्केपिंग का. ठीक है. नोट, क्या नोट लिखा है यहाँ पे? बिल्डिंग that is more than 20,000 square meter built-up area or more shall submit environmental clearance. Suppose your property का जो एरिया है, built-up area, अगर more than 20,000 square meter के ज़्यादा होगा, then you should have environmental clearance certificate or environmental impact assessment study report as applicable approved by Ministry of MOEF. MOEF से शायद कुछ क्वेश्चन आ सकता है. What is the full form of MOEF? That is the Ministry of Environment Forest. So यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है. और स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIA, ये से क्वेश्चन नहीं आ सकता. मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म? सो कंप्लायंस सर्टिफिकेशन. तो ये हो गया आपका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट 1.
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? सॉइल इरोशन कंट्रोल. सॉइल इरोशन कंट्रोल. Control soil erosion and sedimentation, thereby reducing negative impact to the site and surroundings. क्या लिखा है? Soil erosion control measure taken before construction and during construction must conform the best management practice highlighted National Building Code. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सॉइल इरोशन का जो हमको करना है तो उसका काम हम कैसे करेंगे और कौन सा कोड के मुताबिक हम काम करेंगे. तो ये सॉइल इरोशन का पूरा काम होंगे एज पर एनबीसी स्टैंडर्ड. तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे करके आपको पढ़ना है. क्या लिखा है? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है, ये एनबीसी कोड्स हम स्टैंडर्ड से वी कैन फॉलो, बट व्हाट इज द सेक्शन or what is the chapter or which part? Then answer should be part 10 section 1 chapter 4. So NBC standard part 10 section 1 and chapter 4. So ये हो गया आपका दो क्वेश्चन. नंबर 1, सॉइल इरोशन कौन से स्टैंडर्ड से फॉलो होगा? एनबीसी स्टैंडर्ड 2005. चलो मैं लिख देता हूँ. एंड नंबर 2, कहाँ से आएगा, कौन सा सेक्शन में है ना? पार्ट 10 सेक्शन 1 चैप्टर 4. ओके. इसके बाद है डेवलप एप्रोप्रिएट मेजर टू एड्रेस सॉइल इरोशन आफ्टर ऑक्यूपेंसी. ऐसे लिखा, मेन पॉइंट इज दिस इज द मेन पॉइंट. आपको जो करना है सॉइल इरोशन के लिए, आपको एनबीसी स्टैंडर्ड 2005 आपको क्या करना है, वो उसको फॉलो करना है. और वो कहाँ पे है? पार्ट 10 सेक्शन 1 चैप्टर 4. तो यहाँ में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नोट, if topsoil 10 to 20 centimeter in the project not fertile or not suitable for preservation, in such case project may provide relevant justification. This is some exception. Now site selection का basic amenity जहाँ में आपको पॉइंट मिलेंगे. ये जो प्रीवियस दो था ये था मैंडेटरी था, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये आपको करना ही है. मतलब आपका जो प्रॉपर्टी वो सिल्वर में आएगा, ब्रोंज में आएगा, जो सेक्शन में आ सकता है एंड कम, बट मैंडेटरी जो होगा वो करना ही पड़ेगा आपको. इसमें कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. जैसे यहाँ पे एक हो गया मैंडेटरी, सॉइल इरोशन भी मैंडेटरी हो गया. अब आ रहा है बेसिक एम्यूनिटी एसएसपी क्रेडिट 1, जहाँ में आपको मिलेगा एक पॉइंट मिलेगा. क्या लिखा है, चलो देखते हैं. Provide access to basic amenity so as reduce negative impact caused from automobile use. ऑटोमोबाइल यूज तो मतलब हमको ऐसा कुछ करना है जैसे ऑटोमोबाइल से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. तो वो क्या है? जैसे फर्स्ट, सिलेक्ट अ साइट विद इन एक्सेस टू एटलीस्ट 7 बेसिक एम्यूनिटी. कितना, हाउ मच ना? 7 बेसिक एम्यूनिटी विद इन वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर. क्या क्या है? दीज आर द लिस्ट: एटीएम, क्लिनिक, स्कूल, ग्रोसरी, लॉन्ड्री, पार्क, गार्डन, फार्मेसी, पोस्ट ऑफिस, रेस्टोरेंट, यूटिलिटी, थिएटर. तो इसका मतलब क्या है ये हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड ना. देखिए, सपोज दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर साइट, और मान लो इसको सेंटर करके अगर हम एक 1 किमी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये हो रहा है. अगर मान लो 1 किमी इज योर वॉकिंग डिस्टेंस, अगर 1 किमी के अंदर आपके पास एटीएम है, आपके पास स्कूल है, आपके पास मार्केट है, मतलब ग्रोसरी मार्केट है, मान लो आपके पास मेडिकल शॉप है, मान लो आपके पास कोई बैंक है, आपके पास मान लो लॉन्ड्री भी है, कोई गार्डन भी है. तो अगर 1 2 3 4 5 6 मान लो ये 7 चीज़ आपके 1 किलोमीटर के अंदर है. अगर 1 किमी के अंदर ये 7 चीज़ रहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर, हियर एंड देयर बाय वॉकिंग, नॉट यूजिंग द ऑटोमोबाइल. इफ you will not use this automobile, then you reduce the automobile use, then definitely CO2 reduce. If CO2 is reduced, then there is chance to preserve the oxygen, तो ऑक्सीजन इंक्रीज होंगे.
अगर हम ऐसे नहीं कहेंगे तो ये भी कह सकते हैं ग्रीन हाउस जो गैस होगा, ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी रिड्यूस होंगे। तो क्या हो रहा है? हो रहा है ना, सिलेक्ट अ साइट एक्सेसिबली 7 बेसिक एमिनिटी विच विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किमी फ्रॉम द बिल्डिंग एंट्रेंस। ठीक है, क्यों? बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल यूज। ठीक है, सो अगर ये 7 बेसिक एमिनिटी आपका एंट्रेंस के से 1 किमी के अंदर रहेंगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट दिस 1 पॉइंट। इसके बाद क्या लिखा है? द बेसिक एमिनिटी शैल बी फंक्शनल एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और आपने बोल दिया हाँ हाँ सर 7 की 8 9 रहेंगे, पर जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो रहा है तब ऐसा सिचुएशन आ गया, एटीएम इज नॉट वर्किंग और ये लॉन्ड्री का जो 1 किमी के होने के बात हुआ था वो चला गया 1 किमी के अंदर, तो इन दैट केस यू डिडंट गेट 1 पॉइंट, यू विल नॉट गेटिंग एनी पॉइंट। ओके, इसीलिए यहाँ पे नोट में लिखा है फंक्शनल एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, ऑल एमिनिटी आर टू बी कंसिडर ओनली वंस। मान लो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के टाइम आपके पास 7 एमिनिटी हो गया, 1 साल बाद और एक एमिनिटी 1 किमी के अंदर हो गया, तो इसके लिए आपका पॉइंट का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होंगे, एक बार काउंट हो गया तो बस। द एमिनिटी शैल बी एक्सेसिबल टू द बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स एंड अदर यूज ऑफ बिल्डिंग। बेसिक एमिनिटी विद इन द कैंपस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू शो compliance. For campus project with multiple building, the compliance for basic amenities can be shown through one or a combination of following criteria: from center of the campus zone, from entrance of the campus zone। मतलब मान लो आपका जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग जो एरिया में है वो में आप कॉम्प्लेक्स में रहते हो, तो मान लो यहाँ पे एक टावर 1 है, यहाँ पे एक है टावर 2, यहाँ पे है टावर 3, ये है आपका टावर 4, ये है टावर 5, ये है टावर 6 एंड मान लो ये है आपका टावर 7। मान लो आपने अप्लाई किया T1 के लिए सर्टिफिकेशन, ऐसा सिनेरियो में 1 पॉइंट कब मिलेंगे ना, लिखा है फ्रॉम सेंटर ऑफ द कैंपस और जोन और फ्रॉम एंट्रेंस ऑफ द कैंपस जोन। मान लो इसका कैंपस है दिस, तो यह से इधर 1 किमी आपको कंसीडर करना है, नहीं तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स का जो सेंटर पॉइंट है, मान लो ये सेंटर पॉइंट, यह से आपका 1 किलोमीटर कंसीडर करना है। ठीक है, नाउ साइट सिलेक्शन प्लानिंग क्रेडिट 2, इसके लिए पॉइंट 1 क्या लिखा है? एनकरेज द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सो नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज फ्रॉम ऑटोमोबाइल यूज। कैसा है? लोकेट द बिल्डिंग within 800 meter walking distance from a intra-city railway station or bus stop, other mode of public transport। बात क्या है? आप एक प्लॉट में कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर यहाँ पे मान लो आप 10 फ्लोर का एक कुछ कर रहे हो, तो मान लो यहाँ पे 100 नहीं, मान लो 100 पीपल रहेंगे, तो वो पीपल का जो अगर वर्किंग हुआ तो उनको बाहर जाना है। अगर मान लो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं रहेंगे तो कैसे बाहर जाएंगे? आइदर ओला, नहीं तो उबेर, नहीं तो ओन कार, ऐसे बाहर जाएंगे। अगर 100 पीपल के पास 100 कार रहेंगे तो 100 कार से पॉल्यूट होगा, बट इफ there is a public transport or railway station, then क्या होंगे? Then they have to avail the public transport as well as railway station। then हो सकता है 60% people avail this public transport or railway station, 40% people they are use their own vehicle or Ola Uber। then in that comparison we can say
encourage the use of public transport, reduce the negative impact caused from automobile use. And that is why locate the building within 800 मीटर. क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर करना है तो मिनिमम कितना डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए? आंसर विल बी 800 मीटर्स. क्लियर? चलो बढ़िया बात है. लो emitting vehicle, that is the SSP credit 3.1, encourage use of non-fossil fuel vehicle, thereby reducing negative impacts. मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कार, EV. If you are from Kolkata, Mumbai, Delhi, you can see there are lots of electronics vehicle in the main road or highway, because this reducing negative impact. Option 1, low emitting vehicle. फर्स्ट ऑप्शन 1 है इलेक्ट्रिकल व्हीकल. यूज इलेक्ट्रिकल व्हीकल विद इन और आउटसाइड द साइट, catered at least 5% ऑफ द बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स. मतलब अगर आप जो साइट में काम कर रहे हो, जहाँ में मान लो 1000 पीपल रहेंगे, तो 1000 पीपल रहेंगे, एटलीस्ट 5 पीपल कैन यूज दैट इलेक्ट्रिकल व्हीकल. और मान लो आप अपार्टमेंट के अंदर कोई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने यूज़, मतलब उसका जो फैसिलिटी आप रखोगे, तो उसके अंदर अब क्या किया, तो छोटा छोटा जो वैन होता है, इलेक्ट्रिक सोलर वैन और इलेक्ट्रिक वैन और सोलर वैन, वो आपने कर दिया. तो उसके ये हो सकता है द 10-20 पीपल आर यूजिंग दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग हियर एंड देयर. एडिशनली द प्रोजेक्ट शैल इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल चार्जिंग फैसिलिटी. बस सर आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिकल का वो चीज़, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो चार्ज कहाँ में होगा? चार्ज तो करना पड़ेगा ना. इसीलिए लिखा है एडिशनली यू हैव टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी विद इन द प्रोजेक्ट. जहाँ में आप पार्किंग करोगे, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट यू हैव टू मेक इट और इंस्टॉल इट. नंबर 2, CNG. You can see in the auto they are using the CNG. Same, use compressed natural gas within outside cater at 5% बिल्डिंग में. तो यह ऐसा क्वेश्चन यही आ सकता है अगर आपने EV यूज़ कर रहे हो, EV मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और मान लो CNG यूज़ कर रहे हो, CNG गैस, तो कितने परसेंट होना चाहिए? मिनिमम एटलीस्ट 5% आंसर होगा. ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएंगे. अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात होगा तो ऐसा हो सकता है, व्हाई low emitting vehicle are important in the green building. What is the answer? Reducing negative impact or reducing carbon dioxide or reducing greenhouse gases, any kind of answer. The concept is reducing carbon dioxide. Okay, नोट पे क्या लिखा है? नोट के अंदर जो मेन है, चार्जिंग फैसिलिटी फॉर लो इमिटिंग व्हीकल इंक्लूड इलेक्ट्रिक, compressed natural gas, biodiesel, etc. These all are things come in the low emitting vehicle. Next, natural topography और vegetation. यहाँ पे पॉइंट क्या है? 1 से 2. आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है. कैसे मिलेंगे वो हम देखेंगे. Minimize disturbance or restore the site so as reduce long-term negative environmental impact, thereby promoting habitat and biodiversity. मतलब प्लांटेशन. इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है पॉइंट. क्या लिखा है? Avoid disturbance of the site by retaining natural topography, design vegetated spaces, at least 15% on the site area. अगर साइट एरिया मान लो 10 मीटर स्क्वायर है तो 15% कितना होगा? 1.5 मीटर स्क्वायर. तो 1.5 मीटर स्क्वायर जो स्पेस होंगे, उस स्पेस के अंदर आपको क्या करना है ना? नेचुरल टोपोग्राफी को प्रिजर्व करना है, नहीं तो प्लांट करना है. तो वही ग्रेटर देन इक्वल टू 15% 1, अगर ग्रेटर देन इक्वल 20% देन 2. तो क्या लिखा है नोट्स में? क्या लिखा है? नेचुरल टोपोग्राफी इज ब्रॉड सेंस मीन प्रिजर्विंग द नेचुरल फीचर्स. मैंने जो कहा, एक्सपोज नेचुरल रॉक, वाटर बॉडी एट्सेट्रा. Vegetation, soft landscapes shall not be designed with the monoculture plant species, since such species would not promote
habitat and biodiversity। मतलब आप सॉफ्ट लैंडस्केप मतलब जो करते हैं वर्टिकल लैंडिंग वो इसके अंदर नहीं आएंगे, उसके लिए अलग से क्लॉज है, तो मैं बाद में बताऊंगा। Vegetation on the ground shall consider vegetation over built structures such as roof, basement, podium, etc. shall not be considered, sir। यहाँ पे लिखा क्या लिखा है? नेचुरल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब यही होता है जो आपका स्पेस है नेचुरल से, वहाँ पे आपको प्लांट करना है। यहाँ पे क्या है? ये आर्टिफिशियल है। ओवर बिल्ड स्ट्रक्चर, रूफ, बेसमेंट, पोडियम, इस पे अगर आप प्लांट करोगे तो ये पर्टिकुलर एसएसपी क्रेडिट फोर्स से कुछ पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। शायद दूसरे दूसरे जो क्या वो जो दूसरे सेक्शन में हो सकता है वो आपको पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रास मीडियन, ग्रास पेवर, जॉगिंग ट्रैक, ओपन एयर थिएटर, पार्किंग एरिया, ड्राइववे, वॉकवे, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज ए साइट डिस्टर्बेंस। तो सर थोड़ा संभल के, ठीक है, एग्जाम में तो नहीं आएगा बट थोड़ा संभल के। आर्टिफिशियल वेजिटेशन शैल नॉट बी कंसीडर फॉर दिस क्रेडिट कैलकुलेशन। मतलब सिंपल सी बात है, जो आपका स्पेस है उसके 15% में आपको प्लांटेशन करना ही करना है। बात सिंपल। ऑप्शन 2 मैं कहा था ना, यह में क्या लिखा था? यह में लिखा था वेजिटेशन। यह में स्टार में क्यों दिया था? स्टार में दिया था बिकॉज लिखा था वेजिटेशन ऑन द ग्राउंड शैल बी ओवर बिल्ड स्ट्रक्चर, ये परमिट नहीं है। देखो इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखो। वेजिटेशन ओवर बिल्ड स्ट्रक्चर restore disturbed site area by design vegetation spaces over built structure on the ground at least 30%, at least 30%। अगर नेचुरल टोपोलॉजी है तो आप 15% में आपको 1 मिलेगा, 1 पॉइंट। बट बिल्ट स्ट्रक्चर में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो देन आपको मिलेगा 30% के लिए 1 पॉइंट, 40% के लिए 2 पॉइंट्स। तो मतलब ऐसा हो सकता है ये आपका स्पेस है, इस स्पेस में यह में आपका साइट है, मतलब यह में आपका अपार्टमेंट है। तो ये एरिया मान लो है 15%, तो इसके लिए 1 पॉइंट। और ये जो अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट में आपने 30% प्लांटेशन किया है तो इसके लिए 1 पॉइंट। तो ये 1 + 1 आपको 2 पॉइंट मिल गया। बात ऐसा है, ठीक है। डेवलपमेंट फुटप्रिंट इंक्लूड बिल्डिंग फुटप्रिंट एंड अदर लैंडस्केप एरिया सच एज पार्किंग, फुटपाथ, वॉकवे, grass median, grass paver, etc. Vegetation soft landscape shall not be designated. Vertical landscaping external wall can be also considered this credit calculation। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल गार्डनिंग हो सकता है। अभी तो रेलवे, हर जो रेलवे स्टेशन होता है, जो बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन है, वो सभी जगह में वर्टिकल गार्डनिंग हो रहा है। तो वर्टिकल लैंडस्केप इसके अंदर आएंगे। ओनली नेटिव एंड एडाप्टिव वेजिटेशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर दिस क्रेडिट कैलकुलेशन। नेटिव मतलब, एडाप्टिव मतलब वो सिचुएशन में जो नेचुरली हो सकता है उसके लिए क्रेडिट आएगा। आप मान लो कुछ बाहर से कुछ ले आया है, वो नहीं चलेगा। मान लो कुछ ऑर्किड का आपने प्लांट किया तो वो नहीं चलेंगे सर, ठीक है। जो वो प्लेस का जो नेचुरल चीज़ होगा, जो नेटिव ट्री होगा और प्लांट होगा, उसके लिए आपको क्रेडिट मिलेंगे। तो इस यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, अगर नेचुरल टोपोलॉजी है उसके लिए 15%, वेजिटेशन ओवर बिल्ड स्ट्रक्चर उसके 30%, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे भी आ सकता है वर्टिकल लैंडस्केपिंग किसके अंदर आएंगे? वेजिटेशन ओवर बिल्ड स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे और वेजिटेशन ऑन नेचुरल टोपोग्राफी। नाउ क्रेडिट 5 क्या बोल रहे हैं? प्रिजर्व एग्जिस्टिंग फुल्ली ग्रोन ट्री एंड प्लांट न्यू ट्री सैपलिंग सो एज प्रमोट द हैबिटेट एंड द बायोडाइवर्सिटी। केस 1, प्रिजर्व और ट्रांसप्लांट एटलीस्ट 75% ऑफ फुल्ली ग्रोन। मान लो ये आपका साइट है और यहाँ पे पहले से ही बड़ा बड़ा पेड़ है, तो उसका 75% आपको प्रिजर्व करना है और ट्रांसप्लांट करना है। मान लो इस जगह में आपको
इसका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से पहले ये जो आपका ट्री है इसको अच्छे से यहाँ से खड़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस में जहाँ में आपको लैंडस्केपिंग करोगे उसमें अच्छे से उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है प्रिजर्व और ट्रांसप्लांट, ये दो चीज़ लिखा है इसीलिए। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। MOEF मतलब व्हाट डू यू मीन बाई दैट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर लेस देन 1 एकड़ है तो आपको मिनिमम 8 ट्री को आपको ट्रांसप्लांट करना है, ग्रेटर देन 1 एरिया देन 12। और ये भी लिखा है प्लांट ट्री सैपलिंग दैट कैन मैच्योर इनटू ग्रोन अप ट्री विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब ऐसे ट्री प्लांट किया जो ग्रो नहीं हो रहा है तो 5 साल के अंदर होना है, ऐसा ट्री आपको प्लांट करना पड़ेगा। तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। नोट्स में क्या लिखा है, ट्री सैपलिंग शैल बी इन प्लेस ऑफ टाइम ऑफ ऑक्यूपेंसी। ट्री ट्रांसप्लांट फ्रॉम अदर साइट टू द प्रोजेक्ट साइट ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू शो क्रेडिट कंप्लायंस केस बी। हाँ, केस बी में हो सकता है बिकॉज आपको प्लांट कर रहे हो, नया प्लांट कर रहे हो तो दूसरा साइड से आप ले आ सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फुल्ली ग्रोन ट्री or tree sapling on the pro-rate basis is allowed to show credit compliance. Vegetation of soft landscapes shall not be designed because यहाँ पे हम लोग ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, वेजिटेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वेजिटेशन का क्रेडिट यहाँ पे नहीं आएंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ट्री सैपलिंग प्लांट इज पॉट शैल नॉट बी कंसिडर। ऐसे भी नहीं होगा सर, पॉटेड ट्री तो नहीं चलेंगे, जो मिट्टी के अंदर आप प्लांट कर रहे हो वही कंसीडर होगा। अगर पॉटेड टी आएगा तो वो दूसरे सेक्शन में आएंगे, इस सेक्शन में तो नहीं आएंगे, पक्की बात है। नंबर 6, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हीट आइलैंड रिडक्शन नॉन रूफ पॉइंट 1 एंड 2। चलो क्या लिखा है, मिनिमाइज द हीट आइलैंड इफेक्ट सो एज रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो क्लाइमेट। व्हाट इज द माइक्रो क्लाइमेट? माइक्रो क्लाइमेट मीन्स अब जो एरिया में आप लिविंग कर रहे हो तो उस जगह का जो क्लाइमेट की कंडीशन होगा जिसको कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ऑप्शन 1, नॉन रूफ इम्पर्वियस एरिया, प्रोवाइड वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एट लीस्ट 50% एक्सपोज नॉन रूफ इम्पर्वियस एरिया विद इन द प्रोजेक्ट साइट। मतलब क्या है, जैसे शेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ट्री कवर, न्यूली प्लांट सैपलिंग विद इन 5 to 8 years ऑफ प्लांटिंग, ओपन ग्रीड पेवर और ग्रास पेवर, और हार्ड्स के मटेरियल SRI। SRI का मतलब क्या होता है, पहले दिन बोला था, सोलर रेडिएशन इंडेक्स एटलीस्ट 29 नॉट हायर देन 64। तो आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आइदर 50% एक्सपोज नॉन रूफ इम्पर्वियस एरिया, और नहीं तो आपको शेडिंग प्रोवाइड करना है एग्जिस्टिंग ट्री से और सैपलिंग विद इन 5 to 8 years, नहीं तो ओपन ग्रिड पेपर और गैस पेपर करना है। तो वो जो गैस मतलब ग्रास पेपर्स करना है तो ग्रास क्या होगा, वो जो हीट वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं तो एसआरआई वैल्यू एटलीस्ट 29 यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर 50% आप ये कर सकते हो तो इसके लिए 0.1 मिलेंगे, 75% आप कर रहे हो तो इसके लिए आपको 2 मिलेंगे। यह में मेन क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूसेज ऑफ हीट आइलैंड रिडक्शन। नहीं तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRI, ऐसा क्वेश्चन है। ये आपको नहीं पूछेंगे 50% के लिए कितना होगा, 75%, ये आपको नहीं पूछेंगे। SRI वैल्यू शैल बी एज पर ASTM स्टैंडर्ड, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कवर्ड पार्किंग, 50% पार्किंग स्पेस अंडर कवर, वही 50% के लिए 0.1, 75% के लिए 0.2। पार्किंग स्पेस अंडर कवर है रिफर्स टू स्ट्रक्चर कवर पार्किंग, मतलब पार्किंग में एक स्ट्रक्चर्ड है, कोई शेड्स है तो वो पार्किंग स्पेस के अंडर आ रहा है। अगेन हीट आइलैंड रिडक्शन रूफ SS7, क्या लिखा है, यूज द मटेरियल विद हाई सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एटलीस्ट 75% टू द एक्सपोज रूफ एरिया इंक्लूडिंग कवर्ड पार्किंग। पिछले क्या था, एटलीस्ट 29 था, अभी क्या होगा 75 हो गया। मटेरियल विद हाई सोलर रिफ्लेक्स इंडेक्स SRI क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और SRI का मतलब क्या होता है, इंड्यूस वाइट डिवाइडेड बाई लाइट कलर ब्रोकन।
तो ये जो SRI का वैल्यू है डिफाइंड रूप के लिए, जैसे लिखा है स्लोप अगर 2:12 है देन SRI वैल्यू 78, अगर ग्रेटर देन 2:12 है देन 29, जो पहली बार मैंने पिछली टाइम में मैंने कहा था। तो ये है मैक्सिमम SRI वैल्यू जो 64, जब आपका ग्रेडियंट 2:12 से ज़्यादा होगा। इन दैट केस परसेंटेज ऑफ रूफ एरिया कवर विद हाई रिफ्लेक्टिव मटेरियल ग्रेटर देन 75% के लिए 1 पॉइंट एंड 95% के लिए 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। प्रोवाइड वेजिटेशन कवर एटलीस्ट 50% द एक्सपोज्ड रूफ एरिया इंक्लूडिंग कवर्ड पर, तभी भी आपको मिलेंगे 50% के लिए 1.75% में 2 पॉइंट, और कॉम्बिनेशन ऑफ हाई रिफ्लेक्टिव मटेरियल एंड वेजिटेशन, मतलब आप SRI वैल्यू यूज़ कर रहे हो, वेजिटेशन भी यूज़ कर रहे हो, तब आपको ज़्यादा इफेक्टिवली आप हीट को रिड्यूस कर सकते हो। वही 75% के लिए 1, 95% के लिए 2। वाई 75%, वाई नॉट 50%? बिकॉज यू आर डूइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई रिफ्लेक्टिव मटेरियल एज वेल एज वेजिटेशन, इसलिए 75% बोल रहा हूँ। वही बात SRI वैल्यू हाई रिफ्लेक्शन मटेरियल शैल बी एज पर ASTM स्टैंडर्ड, ब्रोकन चाइना मोजाइक टाइल exempted from the SRI value। ये क्वेश्चन आ सकता है, can we use this? SRI material are certified by this, and paver installed over basement shall have at least 29, not higher than 64। ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। Now we'll talk about the light pollution, outdoor light pollution reduction। पॉइंट कितना है? 1 है। Design exterior lighting such that no external light fixture emits more than 5% of total initial design fixture lumens at the angle of 90 degree or higher from nadir straight down। Lighting power density. The lighting power density should be reduced by 30% for the building facade and exterior area। आश्रय, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। What do you mean by आश्रय? और आश्रय का 90.1 कोड किसके लिए है? ये लाइटिंग पावर डेंसिटी का ऊपर है। देखिए 30% का मतलब क्या है? मतलब अगर 30% का लाइट, अगर नेचुरल लाइट आएंगे तो 30% लाइट रिड्यूस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल सोर्स है, अगर उसमें रिड्यूस होंगे उसके मतलब क्या होगा? यू रिड्यूस योर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, देन in that case you will reduce the coal consumption। So by thinking these types of thing, they have mentioned 30%। और यहाँ पे आश्रय स्टैंडर्ड 90.1.2010 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे टाइम में क्वेश्चन यहाँ से आया था। आश्रय स्टैंडर्ड 90.1.2010 फॉर which condition? Design exterior lighting such that site and building mounted luminaries produce a maximum initial luminance as defined ASTRE 91.20। तो ये ऐसा बेसिकली क्वेश्चन ये आ सकता है, ASTRE स्टैंडर्ड 90.1.2010 बेसलाइन किसके लिए है? इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। यूनिवर्सल डिज़ाइन SSP क्रेडिट 9 ensure that the building design cater differently able and senior citizen। क्या लिखा है? Design the building campus provide the following and differently able and senior citizen in accordance with guideline NBC 2005। Appropriately designed prefer car park space having easy access to maintain entrance and closer to the lift lobby। मतलब कार पार्किंग एरिया लिफ्ट लॉबी के नियरर होना चाहिए। Provide at least one can park space for the 100 car park space and the additional every 250 cars park space thereafter defined a local bylaw। Easy access to main entrance of the building। Braille and audio assistant in lift for visual impaired people। Sitting area near lift lobby। शायद लिफ्ट लॉबी क्राउड हो गया तब क्या करना है, वो बैठना है, तो इसीलिए सिटिंग एरिया भी देना प्रोवाइड। नो पॉइंट 10 बेसिक फैसिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड हेल्दी वर्क कंडीशन। इतने मतलब पिछले जो टॉपिक हम बात कर रहे थे ये हो रहा था आफ्टर कंस्ट्रक्शन, बट दैट SSP क्रेडिट 10
ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी वर्क कंडीशन। क्या लिखा है? द बेसिक फैसिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स टू एक्सीड द गाइडलाइन द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 थ्रू 1998। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो जितना आपका कोड बुक्स का नाम लिखा है, क्या करना है, एक फ्रेश पेपर लेना है और एक एक करके लिख लो। उससे 4-5 तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेरे टाइम करीबन 6 to 7 क्वेश्चन आया था मेरे टाइम। एडिक्वेट हाउसिंग टू मीट एक्सीड लोकल लेबर बाय लॉ रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट 3 टॉयलेट सीट, 3 urinal, 100 worker and 1 additional toilet seat, and urinal every 100 worker thereafter as defined by local labor bylaw। फास्ट एड रहना चाहिए, एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर रहना चाहिए, पर्सनल प्रोडक्टिव होना चाहिए, पीपी जिसको कहता है, डस्ट सेपरेशन मेजर, एडिक्वेट लाइट, साइट इमरजेंसी अलार्म, ये सब चीज़ होना है। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट मिलेंगे। जनरली क्या होता है, साइड में ये चीज़ रहता है, ये चीज़ रहता है, ये चीज़ प्रॉपरली नहीं रहता बट रहता है, ये चीज़ रहता है। और अगर एनबीसी आप मान रहे हो तो ये आएंगे पार्ट 7 में, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी गाइडलाइन। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन से आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन से आएंगे। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग गाइडलाइन, एसएसपी क्रेडिट 11, प्रोवाइड बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स, prospective tenants, facility team, descriptive guideline, the educate and help the implement and the maintain green design features, develop owner occupied building। क्या लिखा है? Project specific green building guideline providing information that helps building occupants to implement utilize the green features post occupancy। मतलब क्या है? Basically increase your awareness। Project specific green building renovation guideline providing information that helps developer facilitate team to implement green features during the building renovation process। मतलब you have to increase your awareness, then you have to find out points 1। तो awareness होने के लिए आपको सेशन लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, पोस्टर चिपकाना पड़ेगा, ये सब करना है। टेनेंट में करना क्या है? डिज़ाइन स्टेट इंक्लूड ग्रीन डिज़ाइन फीचर्स, प्रोजेक्ट ब्रोश्योर एज एप्लीकेबल, जो मैंने कहा था पोस्टर्स। और पोस्ट ऑक्यूपेंसी में क्या होगा? पोस्ट ऑक्यूपेंसी में होगा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रीन बिल्डिंग गाइडलाइन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स द टेनेंट्स टू इंप्लीमेंट यूटिलाइज द ग्रीन फीचर्स पोस्ट ऑक्यूपेंसी। तो इसके लिए पॉइंट 1 ये इजीली मिलता है, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट। तो जो एसएसपी, जो साइट सिलेक्शन प्लानिंग में जितना हम बात किया है वो यहाँ पे समरी करके लिखा है। बेसिक एमिनिटी, प्रॉक्सिमिटी, लो एमिटिंग, नेचुरल टॉप, ये पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया। यू कैन से दिस इज ऑल द चेकलिस्ट समराइज वर्जन। ठीक है, तो आई होप हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ यू नीड द स्टडी मटेरियल, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टडी मटेरियल, this is all the study material। if you need this, then you have to do one thing. First, you subscribe my channel. Second, you will share the video. Third, in description you will find my LinkedIn profile. You have to send request to me, and after accept your request, you have to send out the screenshot that you have subscribed me, and definitely you will share any place. Then I will share this whole material for you। Okay, this is a simple step। So yeah, this is all about from my side। So उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लग रहा है, ये सेटअप आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए। और इफ़ यू हैव फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, डेफिनेटली विदाउट हेजिटेशन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड या, इफ यू हैव लर्निंग समथिंग न्यू, then definitely share this video with your circle। So yeah, thank you for watching this video। Good night,
Have a good day.